Sahil, all the best. तुम्हारा साउंड म्यूट होके रखा हुआ। हम बोल रहे क्या कर रहे हैं आप? क्यों? आप इतना आप चेंज क्यों करते हैं अपने आप को? ऐसे ही से क्या करेगा? ये पोल्स कहाँ से क्रिएट करते हैं हम भूल ही गए। ए, हाँ, पेपर को लेना है, पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है ऐसे। एक साइड पे 1 2 3 ऐसे टिल 13 तक लिखना है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड ऑल्सो 1 to 13 लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे नॉर्मल 1 to 13 लाइन बाय लाइन लिखना है दोनों साइड पे। पेज को दो हाफ में डिवाइड करके 1 to 13। Okay, Harshvay is very quick, so he's done. ठीक है, let's start. So without telling you कि क्या book है and कुछ भी context दिए, I'll show a test, set of questions. 13 questions होंगे and आपको जो भी उसका आंसर लगता है, 3 ऑप्शंस होंगे हर क्वेश्चन के and आपको वो अटेम्प्ट करना है. Once you are done with all the 13 questions, then we'll start with the book review. And towards the end, we'll come to this test again. And जो वो second half है, we'll try to attempt the same questions again and see क्या change आता है हम लोगों के perspective में. So let me know if you can see my screen. I am starting the screen show. Can everyone see the screen? Yes. Okay. ठीक है. So the test is called "Are you smarter than a chimpanzee?" This test has been done across the world in front of global experts. And to give you a fact, कि ये जितने भी लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया, ये 13 क्वेश्चंस, only one person has answered 12 questions correctly out of 13. Not one single person has answered all 13 questions correctly. So now it is a test for you as well, कि आप एक अगर रैंडम भी गेस करते हैं तो 33% 3 ऑप्शंस में होते हैं, वो अगर आप बीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते. सो दैट इज द टेस्ट, आर यू स्मार्टर देन अ चिंपैंजी. सो आई एम शोइंग द क्वेश्चंस. वी कैन स्टार्ट नाउ. Can you see the questions? Yes. ठीक है. So the first question is, in the last 20 years, the proportion of people living in extreme poverty worldwide has almost doubled, remained more or less the same, and number C, almost halved.
तो गरीबी जो है पिछले 20 साल में वो क्या डबल हुई है, वो क्या सेम है, या ऑलमोस्ट हाफ हो गई है? You can just write A, B, C in front of question number 1. The next question is, how many of the world's first year old children today have been vaccinated against some disease? दुनिया में 1 साल के बच्चे को कितने % लोग हैं जिनको किसी ना किसी तरह का वैक्सीनेशन मिला है? क्या वो 80% ऑफ द 1 year old चिल्ड्रन है, क्या वो 50% पॉपुलेशन है, क्या वो 20% पॉपुलेशन है? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. The third question is, how did the number of deaths per year from natural disasters change over the last 100 years? Natural disasters के वजह से जो number of deaths है over the last 100 years, उसका क्या हुआ है? More than doubled, remained more or less the same, number C, decreased to less than half. Mostly guesswork, right, Sahil? आपको जो इसमें से ठीक लगता है, guesswork ही है. तो Okay. The fourth question is, where does the majority of the world population live? क्या वो लो इनकम कंट्रीज में रहते हैं, क्या वो मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं, क्या वो हाई इनकम कंट्रीज में रहते हैं? Where does the majority of the world population live? Next question is, worldwide 30-year-old men have spent 10 years in school. जो 30 साल की उम्र के लोग हैं वो कम से कम 10 साल ऑन एन एवरेज स्कूल में गए हैं, जो मर्द हैं. सिमिलर ईयर्स की जो विमेन है उन्होंने कितने साल स्कूल में बिताए हैं? 9 years, 6 years या 3 years? The next question is, which is called as the pin code of the world. There are roughly 7 billion people in the world. 700 करोड़ लोग हैं. Which map shows best where they live? इनमें से कौन सा मैप है जो करेक्टली 700 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है? तो अगर मैं ये जो हर एक पर्सन है that counts 1 billion. तो ये 7 पिन्स हैं. आपको इनमें से गेस करना है कि कौन सा मैप है जो करेक्टली 7 बिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है. Can we move ahead to the next question? Yes. Sir? Okay. The United Nations predicts that by 2100, the world population will have increased by another 4 billion people. तो आज अगर हम 7 बिलियन पे हैं तो वो 11 बिलियन हो जाएगी, ऐसा यूएन का प्रेडिक्शन है. What is the main reason? There will be more children, जो 15 साल के नीचे हैं, बच्चे ज्यादा होंगे. There will be more adults, जो 15 से 74 के हैं, वो लोग ज्यादा हो जाएंगे इसके वजह से. या there will be very old people above the age of 75. Let's say health conditions जो या इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से, इम्प्रूवमेंट के वजह से 75 के लोग ज्यादा जीने लगेंगे उस वजह से. तो कौन सा मेन कारण है जिसके वजह से ये होगा? Number 8 question is, in all low income countries across the world, how many girls finish primary school? In all low income countries, how many girls finish primary school? 20% population, 40% population या 60% population? The ninth question is, there are 2 billion children in the world today.
आज 200 करोड़ चिल्ड्रन है जो 15 साल के अंदर तक हैं. How many children will be there in the year 2100 according to United Nations? क्या ये 200 बिलियन, क्या ये 2 बिलियन जो है वो 4 बिलियन हो जाएंगे, 3 बिलियन हो जाएंगे, या 2 बिलियन के 2 बिलियन ही रहेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन? The 10th question is, global climate experts believe that over the next 100 years, the average temperature will fall, will get warmer, number B, remain stable, number C, get colder. Experts, global climate experts क्या उम्मीद कर रहे हैं? एवरेज टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ही रहेगा, या फिर और सर्दी होने लग जाएगी अभी से 100 साल बाद? The next question is, how many people in the world have some access to electricity? 20% population, 50% population, 80% population. Question number 12 is, what is the life expectancy of the world population? क्या on an average दुनिया में लोग 50 years तक live कर रहे हैं, 60 years तक live कर रहे हैं, या 70 years तक live कर रहे हैं? What is the average life expectancy in the world population? And the last question is, in 1996, tigers, giant pandas and black rhinos were listed as endangered. वो लोग extinction के या endangered condition में थे. How many of these three species are more critically endangered today? जिस हालत में वो थे उससे भी और बदतर हालत में इनमें से 3 species में से कितने हैं? None of them, one of them, या 2 of them? I hope everybody has answered or attempted these questions. If you have, you can write in the chat box yes, and then we can stop this question and move ahead. 2 ही आंसर आ रहा है खाली. आंसर तो बाद में चेक करेगा. जो तुक्का लगाने लगा के देखिए कुछ तो. मुझे तुम्हारा फेवरेट वर्ड आ रहा है हर एक, मतलब वो उसमें. ठीक है. I suppose everybody is done with the test. Now we'll move ahead. एक और क्वेश्चन है, वो 13 क्वेश्चन के बियॉन्ड है, बस आप इसको देख सकते हैं और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं. Which line segment is longer out of the two? अपर या लोअर, ऐसा कुछ करके आप आंसर कर सकते हैं. कहाँ लिखना है? चैट बॉक्स में. अच्छा, चैट बॉक्स में. Ritu ma'am has answered upper. Diganta has answered same. Udeshna thi upper. Ashbya same. ठीक है. So mixed house है. किसी को भी ये नहीं लग रहा है नीचे वाला लाइन लंबा है? ठीक. So this is a divided house. Most people have, equal number of people have answered कि जो ऊपर वाली लाइन है वो बड़ी है, and the other set of people have answered कि ये दोनों बराबर है. Surprisingly किसी ने भी नहीं कहा कि नीचे वाली लाइन बड़ी है. And the correct answer is कि ये दोनों ही लाइन सेम है, क्योंकि लाइन सेगमेंट यहाँ पे लाइन जहाँ खत्म होती है वहीं पे दूसरी लाइन भी खत्म हो जाती है. एरो उसका पार्ट नहीं होता लाइन का. तो ये एक इल्यूजन टेस्ट है जो जनरली करते हैं, एंड कई लोग इसको. हेलो, आप अपना से स्टार्ट कर दो ना रिकॉर्डिंग. जस्ट ओके, एक सेकंड. रिकॉर्डिंग चल रहा है. हाँ. So this is an illusion which is very मतलब जिसके वजह से कई लोगों को लगता है कि नीचे वाली लाइन बड़ी है, जबकि ऐसा है नहीं.
सिमिलरली हम लोगों के माइंड में भी लोगों के बारे में या दुनिया के बारे में एक इल्यूजन है, और कई चीजों के बारे में इल्यूजन है और मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है जिसको लेके हम लोग जी रहे हैं। एंड उसी मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए ये किताब लिखी गई। द बुक इज कॉल्ड फैक्टफुलनेस, विच इज रिटन बाय प्रोफेसर हांस रोजलिंग। प्रोफेसर हांस रोजलिंग पास्ड अवे लास्ट ईयर, ही इज नो मोर, बट ये पूरे जिंदगी भर इन्होंने डेटा एंड इसी के ऊपर रिसर्च किया, और एक ये डेटा साइंटिस्ट थे। इन्होंने दुनिया भर में काम किया है एंड दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्री के हेड्स के साथ, उनके साथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करा। और इन्होंने ये किताब उस एक आखिरी अटेम्प्ट के साथ लिखना चाहा कि जो दुनिया में इग्नोरेंस है बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, शायद उसको वो इस किताब के थ्रू बदल पाए या चेंज कर पाए। एंड दैट इज व्हाई ही रोट दिस बुक। So this is the book. I started reading this book because Bill Gates recommended it. मुझे नहीं पता था कि बिल गेट्स की किताब जो रेकमेंड करते हैं वो इतनी अच्छी होती है। So I got hooked and I really enjoyed reading this book. So प्रोफेसर हांस रोजलिंग कहते हैं कि जो दुनिया में ये जो इग्नोरेंस है बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, शायद आम जनता के बीच में तो हो सकती है बिकॉज उनके पास शायद इतना टाइमली डेटा अवेलेबल नहीं हो। लेकिन जैसे ये टेस्ट हमने किया, ये 13 क्वेश्चंस का टेस्ट, इन्होंने ये टेस्ट बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स पे और यूएन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेटफॉर्म्स पर भी उन्होंने टेस्ट किया। और ऐसी ऐसी कंट्रीज में भी जिनको हम कह सकते हैं जनरली कि ज्यादा एजुकेटेड है, लिटरेसी रेट ज्यादा बेटर है, एक्सेस ऑफ डेटा ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, उन कंट्रीज में भी जब ये टेस्ट हुआ तो व्हाट ही रियलाइज्ड वाज कि अक्रॉस द वर्ल्ड पॉपुलेशन पीपल वेर एक्सट्रीमली रॉन्ग and this misconception was prevalent across the world about basic world facts and figures. तो वो कहते हैं कि आम जनता के बीच में शायद फैक्ट्स एंड फिगर्स की कमी हो सकती है, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं इनके अंदर की क्या कमी है? इनके पास तो ये डेटा होता ही है और ये लोग ये डेटा को यूज भी करते हैं, फिर इनके अंदर इतनी इग्नोरेंस क्यों है? एंड द आंसर दैट ही रियलाइज्ड वाज कि जो ह्यूमन नेचर है हम लोगों का, वही इसके लिए जिम्मेदार है। दैट इज कि हम लोग जिंदगी में बहुत ड्रामेटिक होते हैं और लाइफ के प्रति हर चीज में एक ड्रामा और कुछ एक्सट्रीम्स में सोचने की हमारी आदत होती है। हम चीजों को न्यूट्रल तरीके से नहीं सोच पाते, चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट और इस तरीके से डिवाइड कर करके हम लोग करते हैं। एंड उन्होंने ये 10 ड्रामेटिक इंस्टिंक्ट्स लिस्ट डाउन करे जो उनको लगता है कि सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है एक ह्यूमन बिहेवियर या माइंड के अंदर। एंड उन्होंने इस किताब में ये तरीके भी बताए कि कैसे हम इन इंस्टिंक्ट्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो इस 10 इंस्टिंक्ट के 10 तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, आई विल शेयर ओनली 3 ऑफ देम। आई विल लीव देयर अदर 7 फॉर ऑल ऑफ यू टू डिस्कवर एंड रीड, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय एंड फाइंड इट इंटरेस्टिंग। So let's come to the first instinct, which is called as the gap instinct. So let's see who do we have in the house. ठीक है, अमित सर, the question is for you कि जब मैं ये टर्म यूज करता हूँ कि वेस्ट और ईस्ट, तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आता है ये वर्ड सुनते ही? वापस बोलो। जब हम पहला बार ये आपको कह रहे हैं कि वेस्ट और ईस्ट ये दोनों वर्ड्स को साथ में यूज करता है, तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? डायरेक्शन। ठीक है, और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में और क्या आता है? वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में? वर्ल्ड दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में। जो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। सिविलाइजेशन। ठीक है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशन ये आता है। कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से क्या डेवलप्ड, डेवलपिंग, वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, इस टाइप का कुछ थॉट आता है? आता है। वेस्टर्न कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड एंड मोर वो वाला आता है। राइट। तो ये जो डिबेट है या जो डिस्कशन है ये वेस्ट वर्सेस ईस्ट का, दिस हैज बीन देयर इन टाइम इन मेमोरियल एंड दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन लेंथ कि क्या बेटर है और क्या नहीं बेटर है। बट
अगर हम लोग ये वेस्ट और ईस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर डिसाइड करें तो ये वेस्ट एक्चुअली शुरू कहाँ से होता है? क्या ये वेस्ट इंडिया का वेस्ट होता है? इंडिया के वेस्टर्न साइड पे बात कर रहे हैं? क्या वो अफ्रीका से वेस्ट शुरू होता है, या फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा कह लीजिए उनके तरफ से देखे तो ईस्टर्न साइड जो है उसको कहता है? तो ये वेस्ट और ईस्ट का डिवीजन होता कहाँ से? दूसरा बात है कि क्या ये जो वेस्ट हम लोग कहते हैं कि वेस्ट इज डेवलप्ड एंड ईस्ट इज नॉट डेवलप्ड, तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरा वेस्ट डेवलप्ड है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, जो कि हम लोग शायद डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, क्या इज इट कंपेरेबल विद कंट्रीज सच एज ब्राजील या बोलिविया या पेरू या मेक्सिको? क्या ये सेम है? या फिर जो हम लोग ईस्टर्न साइड में मानते हैं कि ये डेवलपिंग इकोनॉमीज है, तो क्या वहां पर अक्रॉस ईस्टर्न साइड सेम है? क्या जापान विच इज ऑन द ईस्टर्न साइड इज कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डेवलपिंग और ऑन द ईस्टर्न साइड? सिंगापुर जैसा कंट्री है, क्या उसको कंपेयर कर सकते हैं विद इंडिया और बांग्लादेश? तो ये जो हम लोगों का एक फीडेड नैरेटिव है कि देर आर टू एक्सेस, जहाँ एक साइड डेवलप्ड है एंड जहाँ एक साइड डेवलपिंग है, एंड ये जो डिवाइड है बड़ा सा सिर्फ दो लोगों के बीच में, व्हाट प्रोफेसर हांस रोजलिंग बिलीव्स इज दैट ये पुराना जमाना का डेफिनेशन था, ये अब नहीं चलता है. सो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग आर टू क्लीशे फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड. वी नीड अ न्यू डेफिनेशन टू डिफाइन द वर्ल्ड. एंड हाउ डज ही डिफाइन दिस वर्ल्ड? तो वो बोलते हैं कि वर्ल्ड को 4 इनकम लेवल्स पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को सिर्फ डेवलपिंग कह दे ऐसा से फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत रिच लोग हो सकते हैं और बहुत पुअर हो सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री और द रीजन इनटू दिस डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, वी शुड डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू अ मीनिंगफुल बाइफरकेशन. सो द फर्स्ट लेवल इज वो लोग जो लोग दिन में $1 से $2 तक का कमाई करता है, मतलब 75 से 150 रुपीज का कमाई करते हैं. तो विच आर दोज पीपल? जो लोग बहुत गरीबी में रहते हैं दुनिया भर में, एंड मतलब खाने के लिए उनको पानी लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है, पैदल ही जाते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जमीन पे शायद सोते होंगे. तो उस तरह का लोग जो है वो दुनिया में 1 बिलियन है, मतलब करीब करीब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में इस लेवल पर हैं. The second level is level 2, where 3 billion people live, which earns between $2 and $8, मतलब 150 से 600 rupees per day this population earns. So ये लोग क्या है, जो शायद जो पहले लेवल थे उससे बेहतर, शायद वो लोग जमीन पर एक चटाई बिछा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, शायद पानी के लिए अब वहीं पे ना पीना पड़े, अपने घर पे लाने के लिए उनके पास कोई कंटेनर हो सकता है, खाना जो खाते हैं वो उसमें कुछ एक बेहतर, कभी कभार दिन में एक मील कुछ अच्छा खा पाते होंगे. इस टाइप का जो लेवल के लोग हैं, दैट फॉल्स इनटू द सेकंड लेवल वेयर 3 बिलियन पीपल लिव. लेवल 3 इज विच अर्न्स बिटवीन $8 to $32 पर डे, जिसमें आप कह सकते हैं 600 रुपये से 2400 रुपया पर डे अर्न करते हैं. इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उनके पास शायद एक बाइक होगा, घर पे शायद एक छोटा सा फ्रिज होगा, कपड़े धोने के लिए एक शायद वॉशिंग मशीन रख पाए होंगे, एंड इस तरह का एक मीनिंगफुल लाइफस्टाइल चेंज उन लोगों के अंदर है. सो काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी इज क्लोज अबाउट टू 2 बिलियन, 200 करोड़ लोग. एंड द लास्ट कैटेगरी इज लेवल 4, विच इज अबव $32 बिलियन, मतलब 2400 रुपये से ऊपर. एंड ये जिसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट कह ले, 1% पॉपुलेशन कह ले, 10% पॉपुलेशन कह ले, दिस फॉल्स इनटू दिस रेंज. शायद हम सब लोग जो यहाँ आज बैठकर देख रहे हैं, वी ऑल फॉल इन दिस कैटेगरी इन सम वे और द अदर, एंड दिस इज वेयर द remaining or the last 1 billion population lives. So he thinks that this is a more meaningful bifurcation in terms of ये. तो जब हम लोग 4th लेवल पर हैं, तो हम लोगों के लिए ये सोचना कि बाकी सभी लोग गरीब हैं और बहुत एब्जेक्ट पॉवर्टी में रहते हैं, ये बहुत आसान हो जाता है. लेकिन उस आदमी के लिए सोचिए जो आज सिर्फ 150 रुपया तक कमा रहा था, उसके लिए और 150 रुपया अगर उसकी जिंदगी में आ जाए तो दैट इज अ डबल, एंड उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है. वो जो पैदल चल रहा था शायद वो एक साइकिल अफोर्ड कर सकता है. तो लेकिन वो चेंज हम लोग 4th लेवल पे रह के देख नहीं पाते हैं. ये जो चेंज, इतना बड़ा चेंज होता है, और हम इसको डेवलप्ड और डेवलपिंग के डेफिनेशंस के बीच ही रह जाते हैं. सो दैट इज हाउ ही टॉक्स अबाउट द गैप इंस्टिंक्ट.
एक ये रिप्रेजेंटेशन है कि जो लेवल 1 पे रहते हैं उनका ड्रिंकिंग वाटर का कंडीशन क्या होता है, लेवल 2 पे क्या होते हैं, लेवल 3 क्या है, लेवल 4 क्या है। सिमिलरली इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं, लेवल 1 पे लोग पैदल जाते हैं, सेकंड पे मे बी साइकिल यूज करते हैं, थर्ड पे जो है वो 2 व्हीलर एंड फोर्थ पे जो है वो कार अफोर्ड कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दैट इज द फर्स्ट instinct. Now we talk about the second instinct, which is the negativity instinct. So now I'll again put a question in front of all of you and I would expect कि आप लोग chat box पे आंसर करें। कितने लोगों को लगता है कि दुनिया में जो गरीबी है वो अभी भी बहुत ज्यादा लेवल पर है एंड मतलब उसमें जो चेंज है वो कोई बहुत मीनिंगफुल चेंज हुआ नहीं है? How many people think that there is abject poverty still at a large level in the entire world? ठीक है, Harsh Bhai said still at large. Vaishali the first one. Okay. Large. Aman has also said large. Amit Ji has also said large. The next question is, Mudit sir has said improved. पल्लव सर कंसिडरेबली लो। ओके, सो आई गेट द आंसर। तो काफी लोगों को लगता है कि अभी भी एक लार्ज पॉपुलेशन है जो एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है। द सेकंड क्वेश्चन इज कि हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि हमारे जो दादा परदादा थे वो लोग जैसे उम्र तक जी पाए, उनका जो लाइफस्टाइल था जिसके वजह से वो जी पाए, हम लोग शायद उतनी लंबी लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं रख पाएंगे। हाउ मेनी पीपल अग्री विद दिस स्टेटमेंट? येस और नो? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। Okay, Pallav sir disagrees, Sham sir disagrees. So most people think कि हम लोग शायद जो भी नो लिख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा जिंदगी जी पाएंगे as compared to others. So I think most people agree on this part कि हम लोग ज्यादा जी पाएंगे. The next is कि we are seeing increased number of disasters happening. earthquake हो रहे हैं कहीं, कुछ सुनामी आ रही है, storms आ रहे हैं, and इसके वजह से जो deaths हैं वो काफी हो रही है। तो कितने लोगों को लगता है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो ड्यू टू डिजास्टर जो है वो ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लास्ट कुछ 100 सालों में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? जो भी इंक्रीज डिक्रीज आप लिख सकते हैं। श्याम सर हैज रिटन इंक्रीज्ड, पल्लव सर डिक्रीज्ड, डिक्रीज। ठीक है, अगेन द हाउस इज डिवाइडेड ऑन दिस पार्ट। ठीक है, So I get it, जो हाउस का व्यू है। Now let's see some of the interesting charts based on what do we feel, on what do everybody feel and how the actual data shows. So this is the website that was designed by Professor Hans Rosling and his team and it is still running. So सबसे पहले चार्ट पर आते हैं which is on the income front. सो ये जो है दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया। सो ये जो रेड कंट्रीज है दीज आर एशियन कंट्रीज, येलो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ग्रीन अगर आप देख सकते हैं तो दीज आर अमेरिकन कंट्रीज एंड जो नीचे ब्लू है दैट इज अफ्रीकन कंट्रीज। तो वी आर इनटू 1950 नाउ एंड आप देख सकते हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसमें 57% पीपल लिव इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। अभी आप समझिए इंडिया इंडिपेंडेंट ही हुआ है, चाइना में रेवोल्यूशन आया है, चाइनीज रेवोल्यूशन आई है, वहां पे पुरानी सरकार और जो राजा थे उनको निकाल दिया गया एंड माओ कम्स इनटू पावर। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है एंड इस टाइम का सिचुएशन है जहाँ पे दुनिया में एब्जेक्ट जो पॉवर्टी है वो 57% है, बिलो इनकम लेवल 1, मतलब $1 $2 कमाते होंगे उस समय पे। अब हम लोग इस टाइम फ्रेम को इंक्रीज करते हैं, वी कम टू द प्रेजेंट टाइम्स एंड सी हाउ दिस चेंजेस। धीरे धीरे जो है जो एब्जेक्ट पॉवर्टी है वो कम होते जा रही है एंड वी कम टू 1980s एंड टू 1990 जो 57-58% था, नाउ यू सी दैट पॉवर्टी पोर्शन इज ओनली 40%। तो मतलब हमने 40 साल के पीरियड में 1950 से 1990 में हमने 20% पॉपुलेशन को गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया एंड अ लार्ज contribution obviously is of China and India where large number of people lived.
तो 1980 में कुछ खास होने लगा जब चाइना के जो पहले या मॉडर्न चाइना के जो फाउंडर थे माओ जेडोंग, उनकी डेथ हो जाती है एंड देन अ न्यू लीडर कम्स हु वाज नेम्ड एज डाओ जियोपिंग। और इंडिया में भी कुछ इसी तरीके से 1990 में होता है जब राजीव गांधी जी की डेथ होती है एंड देन द न्यू प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव कम्स। एंड इन दोनों ही के आने के वजह से एक बहुत ही बड़ा दोनों की कंट्री में जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है उसमें एक चेंज आता है, जहाँ पे चाइना पहले एक्सट्रीम कम्युनिस्ट थी अपने इकोनॉमिक फिलॉसफी में भी, और इंडिया जो कि एक सोशलिस्ट फिलॉसफी पे मॉडल पे वर्क कर रही थी, सडनली ओपनड इट्स मार्केट टू द इंटायर वर्ल्ड एंड एक कैपिटलिस्ट मार्केट की तरफ बढ़ने लगी। बाय कैपिटलिस्ट मतलब वेल्थ क्रिएशन, बिजनेसेस को ज्यादा फ्रीडम एंड इस तरीके के रिलैक्सेशन देना शुरू करती है। एंड जस्ट सी कि 1990 के बाद क्या चेंज होता है इन द नेक्स्ट 30 years। And China and India, they are the ones who are leading, and by 2019 they bring almost a large population into from level 1 to level 2 and level 3। तो चाइना जो है उसकी पॉपुलेशन अब ऑलमोस्ट लेवल 3 पर है, अ लार्ज चंक ऑफ इट इज आल्सो इनटू लेवल 4। इंडिया अभी लेवल 2 पर है, बट जो एब्जेक्ट पॉवर्टी है दैट नंबर हैज कम टू 10%, जो कि 1990 में 40% था। तो लास्ट 30 साल में हमने 30% पॉपुलेशन को और गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया। तो दिस शुड गिव यू अ सेंस कि जो हम लोगों को दुनिया या मीडिया के थ्रू नैरेटिव्स फीड हो रहे हैं उसमें और रियलिटी में कितना बड़ा फर्क है। सो दैट वाज द फर्स्ट चार्ट। नाउ लेट्स कम नेक्स्ट ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें मोस्ट लोगों ने कहा कि जो हम लोग ज्यादा जिंदगी जिएंगे, एंड लेट्स सी इफ वी ऑल अग्री और इवन द डेटा शोज इन द सेम लाइन। सो ये इंडिया है। 1950 में अगर आप देखेंगे इंडिया, जिसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 35। सिमिलरली अगर आप चाइना देखेंगे, सो द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन चाइना वाज 41। दिस इज यूएस। उस 1950 में वहां पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 68। नाउ सी हाउ दिस चेंजेस फ्रॉम 1950, जहाँ पे एक लार्ज पॉपुलेशन आप देखेंगे कि इस रेंज पर है, और क्योंकि इंडिया एंड चाइना दोनों ही कंट्री हैं जो एक बड़े पॉपुलेशन को केटर करती है। तो जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो आप देखते जाइए, ब्लू वाले जो डॉट्स हैं विच आर अफ्रीकन कंट्रीज, जिसको हम जनरली पुअर कंट्रीज मानते हैं, उनमें भी देखिए किस तरह का चेंज आते जा रहा है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंप्रूविंग अक्रॉस रीजन, चाहे वो किसी भी लेवल की कंट्री हो। एंड आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव इन सम वे और द अदर इंप्रूव्ड ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जहां इंडिया 35 पे था, the lowest country today which is Central African Republic also has a life expectancy of 52। so आप देखिए कितना remarkable change हुआ है। चाइना, इंडिया which started at 35 is today at 70, मतलब उसने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डबल कर दिया है। एंड अमेरिका which started at 68 has reached to 78 in those last 70 odd years। सो दिस इज ऑन दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि बहुत गजब का चेंज हुआ है, बहुत गजब का पॉजिटिव प्रोग्रेस हुआ है। और जबकि दुनिया हमको ये एनेक्डोटल एविडेंस हम देखते हैं कि अरे वो इतनी छोटी एज में चले गया और वो सब कुछ ही तो ठीक था, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो रही है कि जिसकी वजह से शायद हम जी नहीं पाएंगे। बट हम लोगों को ये सोचना चाहिए शायद कि नेक्स्ट 40-50 ईयर्स में साइंस में इतना डेवलपमेंट हो सकता है कि हम लोग शायद मरे ही नहीं, एंड हमें यूथेनेशिया जैसी चीजों को अपनाना पड़े जहां फोर्सफुली हम लोगों को अपनी लाइफ गिव अप करनी पड़े। दैट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। द लास्ट पार्ट इज, सो दीज वे टू ये चार्ट्स जो मैं दिखाना चाहता था। और भी इम्प्रूवमेंट्स है विच यू कैन सी। चिल्ड्रन डाइंग जो बिलो द एज ऑफ 5, चाइल्ड मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं, दैट हैज डिक्रीज फ्रॉम 44% इन 1800 टू 4% इन दिस करंट सेंचुरी। डेथ्स फ्रॉम डिजास्टर जो हम लोग सब कह रहे थे कि शायद ज्यादा हुई हैं, आप इसमें देखिए कितना गजब का चेंज है। प्लेन क्रैशेस जो हुए हैं, 10 बिलियन पीपल, 2100 लोगों की डेथ होती थी 1920s 1930s में, विच हैज नाउ कम टू 1% पर 10 बिलियन पैसेंजर माइल्स।
लिटरेसी रेट में देखें, जो बेसिक एजुकेशन है, लिखने पढ़ने की जो क्षमता है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 10% to 86%, एंड ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पे आप देख सकते हैं वी हैव इम्प्रूव्ड in some sense or the other. So this marks the end of the second instinct, which was the negativity instinct. So life में अगर आप एक मंत्र इससे ले लें कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा चीजों में पॉजिटिव होंगे तो शायद हम करेक्ट ही होंगे, क्योंकि स्लो जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत स्लो होती है, एंड कोई भी मीडिया उसको दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। लोगों को फियर बेचना आसान होता है क्योंकि उससे आपका अटेंशन जल्दी हम खींच सकते हैं। तो प्रोग्रेस जो होती है वो चाहे बहुत स्लो होती है, लेकिन अगर आप उसको एक अच्छे लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी रिमार्केबल प्रोग्रेस। तो दैट इज नंबर 2। द लास्ट is the size instinct, and इस पे I want to show something. So this was the most favorite part of mine, जो size instinct के ऊपर था कि just give me 1 second. हाँ, तो साइज इंस्टिंक्ट ये जो पोर्शन था, ये जो चैप्टर था, दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि 2007 में हर साल वैसे होता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक मीटिंग होती है जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े मिनिस्टर्स ऑफ ऑल कंट्रीज या बड़े बड़े कंट्रीज दे गो टू दिस मीटिंग, जो जनरली डावोस स्विट्जरलैंड में होती है। और आप सोच सकते हैं कि ये सभी लोग हैं जिनके पास डेटा और सब कुछ अपने हाथ में होता है, तो आप उम्मीद करते होंगे कि इनको दुनिया के बारे में तो कुछ बेहतर ही पता होगा हम सब लोगों से। और ऐसी एक मीटिंग में 2007 में वहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे थे, और उस मीटिंग में एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा इवेंट होता है या एक इंसिडेंट होता है विच आई वुड वांट टू नरेट। तो द टाइटल इज व्हेन इंडिया फॉरगेव द वर्ल्ड फॉर इट्स मिस्टेक। तो उस डिबेट और डिस्कशन में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही थी, और एक जर्मनी के जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर थे उन्होंने खड़े होकर एक बड़ा ही न्यूट्रल सा स्टेटमेंट मारा, और ऐसे मारा स्टेटमेंट उन्होंने जैसे कि एकदम स्टेटेड फैक्ट है। एंड ही सेड the forecast show that it is China, India and the other emerging economies that are increasing their carbon dioxide emissions at a speed that will cause dangerous climate change. In fact, China already emits more CO2 than the USA, and India already emits more than Germany. So ये स्टेटमेंट उन्होंने वहां पर रखा, और इस स्टेटमेंट को जैसे ही उन्होंने रखा तो जो चाइनीज एम्बेसडर थे और जो इंडियन एम्बेसडर थे उनके चेहरे देखने लायक थे, क्योंकि दे डिड नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट। जो चाइनीज डिप्लोमेट थे उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो गुस्सा अपना दिखाकर सीधा देखते रहे, लेकिन इंडियन डिप्लोमेट वहां पे चुप नहीं रहे। लेकिन पहले देखते हैं कि जो ये एनवायरमेंटल मिनिस्टर जिन्होंने ये बात कही उनका डेटा कितना सही और कितना नहीं। So this is a data on CO2 emissions. I'll come to this sheet. मैंने बाकी सारे जो कंट्रीज थे उनको ब्लर कर दिया है। I have kept only these 4 countries which were in consideration: India, Germany, US and China. And we are at 2007. तो एनवायरमेंटल मिनिस्टर जो वहां थे उन्होंने क्या था, कहा था कि जर्मनी को इंडिया ने क्रॉस कर दिया एंड यूएस को चाइना ने क्रॉस कर दिया इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या नंबर था। जर्मनी का नंबर था क्लोज अबाउट टू 1 मिलियन मेट्रिक टन्स, whereas इंडिया वाज एट 1.4 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो जो उन्होंने कहा वो सही कहा एक तरीके से। सिमिलरली अगर यूएस का देखें तो इट वाज 6.13 मिलियन मेट्रिक टन्स, एंड जो चाइना का था वो था 6.87 मिलियन मेट्रिक टन्स। अगेन चाइना बीट करती है यूएस को, एंड इस बात पे भी जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे वो सही थे। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कहा कि जो चाइनीज और जो इंडियन ऑनवॉय थे वो लोग इस बात से खुश नहीं थे। क्या कोई भी अटेम्प्ट करना चाहेगा कि वो लोग क्यों खुश नहीं थे इस बात से? Anybody can unmute and attempt this question. कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहता? हर्षप्रिया, डू यू वांट टू अटेम्प्ट? ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि वो क्यों नहीं कर रहे थे।
जब ये इंसिडेंट हुआ तो जैसे मैंने कहा चाइनीज एम्बेसडर ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब इंडियन डिप्लोमेट की बारी आई तो उन्होंने खड़े होकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा it was you, the richest nations, that put us all in this delicate situation. You have been burning increasing amounts of coal and oil for more than a century. You and only you pushed us to this brink of climate change. But we forgive you because you did not know what you were doing. And in our culture, we believe we should never blame someone retrospectively for the harm that they were unaware of. But from now on, we count carbon dioxide emissions per person. And ये मॉन्टेक सिंह आलूवालिया जो कि इंडियन डिप्लोमेट थे, उन्होंने ये बात कही और अब उनके डेटा को देखते हैं जो उन्होंने ये बात कही वो कितना सही बैठता है. सो ये जो डेटा दिखा रहा था दैट वाज द टोटल एमिशन बाय कंट्री एंड इसमें डेफिनेटली इंडिया एंड चाइना वे क्रॉसिंग रिस्पेक्टिवली जर्मनी एंड इंडिया. बट अगर हम पर पर्सन एमिशंस देखें तो लेट्स सी वेयर दिस कंट्रीज स्टूड. यूनाइटेड स्टेट्स वाज एट नंबर 8. Germany was at number 23. China was at number 62. And India जो कि बहुत justified तरीके से गुस्सा था, that was at number 122 in 2007. And उन्होंने ये बताया कि जो per person consumption है वो बहुत कम है as compared to this rich countries, जहाँ पे इंडिया में सिर्फ पर पर्सन 1.18 टन यूज हो रहा था. वहीं अगर आप यूएस की कंजम्पशन देखें विद अ मच लेसर पॉपुलेशन, 1/4 पॉपुलेशन, दे वर कंज्यूमिंग पर पर्सन 20 टाइम्स एज कंपेयर टू इंडिया. एंड ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि वो कंट्रीज हम लोगों को बता रहे थे कि आपको क्यों अपने एमिशंस पे कंट्रोल करना चाहिए और क्यों आपको इस क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में ज्यादा पैसे देकर कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस चीजों के लिए. एंड दैट वाज इट. सो दिस इज अ ग्रेट मेंटल मॉडल टू थिंक कि जब भी हमें एब्सोल्यूट नंबर्स मिले, चाहे वो छोटा हो सकता है चाहे वो बड़ा हो सकता है, उसको रिलेटिवली कंपेयर करने की जरूरत है सो दैट वी कम टू अ मोर जस्टिफाइड कंक्लूजन rather than thinking only in absolute numbers. So जैसे कहा big compared to what, तो वो काफी बड़ा नंबर तो था, लेकिन as compared to what US was doing or what Germany was doing, it was much smaller. So that is the size instinct. So these were the 3 instincts that I wanted to touch upon. तो क्या इस बुक में एक क्वेश्चन ये भी उन्होंने आंसर करने की कोशिश करी कि क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो रहा? क्या हम लोगों को ब्लाइंडली ऑप्टिमिस्टिक हो जाना चाहिए? क्या हम लोगों को डिल्यूजनल हो जाना चाहिए कि नहीं कुछ दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा? तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है. हमें he believes कि he is a rationalist and a possibilist, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अगर आपके पास सही डेटा एंड सही इंफॉर्मेशन हो तो आप सही इलाज और सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे. एंड जब तक वो डेटा नहीं होगा आप हैप्पीजेडली या बिना किसी कॉन्क्रीट सोल्यूशन के तरफ बढ़कर आप शायद सिर्फ जो सबसे अर्जेंट आपको अपने नजर में दिख रहा होगा, ये जो सबसे ज्यादा नॉइस कर रहा होगा आपके सामने, आप शायद उन्हीं चीजों को एड्रेस करेंगे. सो अल्टीमेटली यही था कि उनका कहना यही था कि हम फैक्ट्स और डेटास की तरफ ज्यादा जाए, जाकि नैरेटिव्स और जो परसेप्शंस हमको फीड किया जाता है मीडिया के द्वारा या और लोगों के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, उनको बिलीव नहीं करना चाहिए. एंड वो उम्मीद करते हैं कि शायद इस किताब के थ्रू वो हम लोगों के अंदर इस तरह का टाइम फ्रेम या पर्सपेक्टिव या फ्रेमवर्क डेवलप कर पाएंगे. द टाइम since I read this book, I can say this and with much confidence कि मैं बहुत एंशियस होता था चीज़ों को, क्योंकि कॉन्स्टेंटली न्यूज़ पढ़ते रहता था, तो हमेशा ऐसा लगता था, बहुत हेल्पलेसनेस सी फील होती थी कि ये दुनिया में इतना गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छे प्रोग्रेसेस हो रहे हैं. डेफिनेटली दुनिया में बहुत कुछ गलत भी है, उनको एड्रेस करने की भी जरूरत है, लेकिन जिस लेवल पर हम लोगों को इंफॉर्मेशन फीड करी जा रही है शायद उससे रियलिटी बहुत अलग है. एंड दैट इज द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव थ्रू दिस बुक. And now we'll quickly move to the test again,
and see how do we score on the test, and then we'll reveal the answers and see किसने कितना score किया. So is everyone ready? If you are, you can write in the chat box yes. Okay. So let's quickly go through the questions. Now I will not. I have written in the notepad. So CA सब कुछ. हाँ. तो ठीक है मैं मतलब you have to show it right. हाँ अभी मैं आंसर्स रिवील करूंगा. विल सी कि Okay. टोटल कितना डिफरेंस है. सी लिखा है क्या आप? देखता है मुदित. अरे हमको लगा हम लिखा आप लिखा है आई डोंट नो. Okay. Thanks मुदित. Okay. ठीक है. Okay. The first question again will go. In the last 20 years, the proportion of people living in extreme poverty worldwide has almost doubled, remained more or less the same, almost half. I think ये आंसर अब हर कोई सही कर ही लेगा. The second question is, how many of the world's first-year-old children today have been vaccinated against some disease? 80%, 50%, 20%. The next question is, how did the number of deaths per year from natural disasters change over the last 100 years? More than doubled, remained more or less the same, decreased to less than half. Where does the majority of the population live? Low income countries, middle income countries, high income countries. The fifth question is, worldwide, 30-year-old men have spent 10 years in school on average. How many years have women spent on an average in school? 9 years, 6 years, 3 years. There are roughly 7 billion people in the world. Which map shows best where they live? A, B, C. Yeah, I think still will remain a tough one, but let's see who guesses it right. The next question is, the United Nations predicts that by 2100, the world population will have increased by another 4 billion. What is the main reason? There will be more children, there will be more adults, there will be more very old people. Eighth number question is, in all low income countries across the world, how many girls finish primary school? 20%, 40%, 60%. Question number 9, there are 2 billion children in the world today, aged 0 to 15 years old. How many children will there be in the year 2100 according to United Nations? 4 billion, 3 billion, या फिर जो 2 billion है वही रह जाएंगे. Question number 10, global climate experts believe that over the next 100 years, the average temperature will get warmer, remain stable, get colder. Number 11, how many people in the world have some access to electricity? 20%, 50%, 80%. Question number 12, what is the life expectancy of the world population? 50 years, 60 years, 70 years. And the last question is, in 1996, tiger, giant pandas, and black rhinos were listed as endangered. How many of these 3 species are more critically endangered today? None of them, 1 of them, 2 of them. I hope we are all done with the answering with the questions, and then we can check now कि हमने पहले क्या आंसर दिया था और अब कितना आंसर दिया था, और विल आफ्टर यू आर डन चेकिंग तो आप अपना स्कोर लिख सकते हैं बिफोर इतना एंड आफ्टर इतना, एंड देन देखते हैं कि आपने चिंपैंजी को बीट किया या नहीं किया. सो द फर्स्ट आंसर इज कि 20 इयर्स में जो
पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी की पॉपुलेशन है दैट इज ऑलमोस्ट हाफ इन द लास्ट 20 years. सेकेंड क्वेश्चन कि 1 year old चिल्ड्रन जो है जिसको किसी फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन मिला हो दैट इज 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो 1 year old के हैं. How did the number of deaths per year from natural disaster change over the last 100 years? The answer is it has decreased to less than half. So if you have given the correct answer, write 1, or if not, then cross. Be honest with your judgment and everything. Number 4, where does the majority of the world population live? The answer is middle income countries. Number 5, worldwide 30-year-old women have इसका आंसर है कि कितने number of years women ने spend किया है, that is 9 years. ये वाला टफ है. Number 6 का आंसर है 1 billion people live in America, 1 billion people live in Europe, 4 billion people live in Asia, and 1 billion people live in Africa. So the answer is A. Number 7, United Nations जो बोल रहे हैं कि 4 बिलियन पीपल लोग बढ़ेंगे, तो वो किन वजह से बढ़ेंगे? So there will be more adult, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेंगे इस वजह से. ये जो बच्चे थे वो लोग बड़े होंगे एंड दे विल रिमेन देयर, सो उसके वजह से ये ज्यादा होंगे. नंबर 8, इन ऑल लो इनकम कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हाउ मेनी गर्ल्स फिनिश प्राइमरी स्कूल? Low income countries में भी 60% of the girls go to school and they finish their primary school. There are 2 billion children in the world today जो 0 to 15 है. 2100 तक भी the United Nations assume या predictions है उनका कि population जो नई मतलब 0 to 15 years के age में हर साल होंगे that will still remain 2 billion because average जो बच्चे पैदा हो रहे हैं women are more educated, are more they know more about their life and all of it, and अब पहले की रिक्वायरमेंट नहीं रही क्योंकि पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो देयर वाज हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो उसके वजह से एज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस ज्यादा बच्चे पैदा करते थे सो दैट दे कुड मतलब बेनिफिट फ्रॉम देम इन सम सेंस, फार्म पे काम करवा सकते थे या कुछ और तरीके से, बट अब वो जरूरत नहीं होती है, तो दैट इज देयर. Number 10 is global climate experts believe that over the next 100 years the average temperature will get warmer. I guess everybody will agree on this. 11th number, how many people in the world have some access to electricity? The answer is 80%. What is the life expectancy of the world population? The answer is C, 70 years. And last, कि इन 3 जो species थे इनमें से कितने endangered हैं अभी भी? The answer is none of them. So now is the time for the revelation, and I would want everyone to write in their chat box कि पहले आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे और अब कितने आंसर्स करेक्ट हैं, and you can start writing in the chat box. Before का भी बताइए अर्जुन. 3 before, 5 and 8, 4 निकांतोदा, 5 and 8. श्याम सर का क्या रहा सर? 5 and 8, 6 and 9. ऋतु मैम तो एकदम फाड़ रहे हैं, पहले भी चिंपैंजी को बीट किया, बाद में तो उन्होंने काफी लीड ली. 4 and 7. तो आई थिंक एक जो जनरल इससे आउटकम निकल के यही आया है कि पहले जो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट वर्ल्ड दैट वाज मोर पेसिमिस्टिक. एक जब फिर से हमने इसको टेस्ट किया तो पीपल आर मोर पॉजिटिव एंड शायद वो प्रोग्रेस किसी तरीके से देख पाए हैं, एंड दैट इज द मैसेज दैट ही वांटेड टू गिव. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि सब लोग इस किताब को फिर से पढ़ें. आई वुड लिंक दिस बुक इन दी जो ग्रुप है सेपेंट का, उसमें मैं रख दूंगा, and you can read it. This is a fascinating book, and that was all from my side. Thank you so much. Any questions and feedback, I'm open to it now. जैसे अमित सर कहते हैं कि या तो बहुत ज्यादा समझा दिया या बहुत अच्छा समझा दिया. So I don't know which one is it, but I hope you all liked it. किसी का कोई कमेंट?
आई ओपनिंग लवली. ठीक है. If no questions, then we can end this. I wish all a happy weekend. Weekend तो खत्म ही हो गया, नहीं कल है Sunday, sorry. ठीक है. So sir, can we end this session today? Thank you sir. बंद एंड कर देना सर मीटिंग. Yes, Sahil. Yes, Sahil. ओके ठीक है. बाय बाय. थैंक यू.